Hi everyone. So there was some problem in the previous video which just abruptly ended. So not an issue. I was actually trying to show you the videos on the medium of propagation of the different waves. So we'll do it first and then we'll see the written part of it जो हमारा आपका बच रहा था आगे का portion. So let me first play this video to you. I hope it is available on the screen and you're able to hear and see this. Now we'll try to see all the four kind of waves and कैसे propagate होता है उसका जो direction है. That is the only thing that you actually need to cover from here. Rest I'll be giving you in writing just after this video ends. Be divided into subcategories, like P or primary waves, This is a type of primary body waves. wave that moves quickly through solid rock, liquids, and earth, and can sometimes be heard by animals, explaining why dogs may bark right before an earthquake hits. Next come the S, or secondary waves. These body waves are stronger and travel farther, so more people feel them during an earthquake. As they travel, they move rock particles up and down or side to side. After P and S waves come surface waves, which follow body waves and cause the most damage. Surface waves include the fast Love waves, named for British seismologist A.E.H. Love, which create horizontal movement, and the slow but larger Rayleigh waves, named for British physicist Lord Rayleigh, which produce most of the ground movement felt during an earthquake. Seismic waves naturally. So these are the contents that I borrowed from your, Britannica, which is considered as the most or one of the most reliable source, just for the sake of that particular video, so that it helps you see that किस तरीके से चारों waves जो हैं उनका movement of propagation है. तो हमने प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स की जो डिटेल्स है वो ऑलरेडी कर ली थी इन द प्रीवियस वीडियो. नाउ विल कंटिन्यू विद द surface waves. So we are done with the body waves for the time being. Please do not forget to check the earlier video, otherwise you will not be able to make sense of whatever we are doing right now. And also do check all the earlier videos which are available on the channel, because we have been doing right from the beginning, right from the scratch. The environment videos are also available and all the links of different playlists are given in the description section of the particular video. Please do not forget to like, comment, share and subscribe. So these are the theories of P and S waves that we are done with, which were the body waves. And I have shown you the direction of propagation for all the kind of waves, because 3D it's really helpful. Britannica is the website I used to show that. Okay, surface waves अब हम आगे cover करते हैं. अब बॉडी वेव्स तो हमने देख लिया that because of the release of energy, the waves are generated which will move in all the direction and they will travel through the entire body of the earth. Now the body waves, while they are traveling through the earth and reaching in different parts of the bodies of the earth, so the body waves interact with the surface rocks. earth के surface पे जो rocks present हैं, so the body waves interact with the surface rocks and generate new set of waves. ये देखिए, इसको समझिएगा ध्यान से. पहले सेट में हमने क्या देखा कि विद इन द बॉडी ऑफ द अर्थ, ठीक है, वेव्स विल बी जनरेटेड एंड इट विल ट्रैवल थ्रू आउट द बॉडी. और उसके बाद क्या हो जाएगा, अर्थ के सरफेस पे जो रॉक्स प्रेजेंट हैं, बॉडी वेव्स उनके साथ इंटरैक्ट करेगी और नए सेट ऑफ वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस करेगी. अब ये जो नए सेट ऑफ वेव्स प्रोड्यूस होते हैं आफ्टर इंटरैक्शन ऑफ द बॉडी वेव्स विद द सरफेस रॉक्स, इन्हीं को हम बोलते हैं सरफेस वेव्स. ठीक है, अब ये सरफेस वेव्स हैं तो नाम से ही समझ में आ रहा है दैट दे विल मूव ओनली अलोंग द सरफेस. ये बॉडी में नहीं कवर करेंगे. इनकी वेवलेंथ काफ़ी बड़ी होती है. दे हैव वेरी लॉन्ग वेवलेंथ and therefore they are also called as long period waves. These are very direct lines which can be given in prelims as correct or incorrect statements. So please do not take any point lightly. ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पे हमने देखा है कि जैसे एस वेव्स जो जिस तरीके से प्रोपोगेट कर रहे होते थे, सरफेस वेव्स भी उसी तरीके से प्रोपोगेट कर रहे होते हैं. देयरफॉर दे आर ऑल्सो द ट्रांसवर्स और शेयर वेव्स, क्योंकि वो सेम मेथड होता है प्रोपोगेशन का. बट डिफरेंसेस होते हैं, कुछ डिफरेंसेस होते हैं विद द एस वेव्स. फॉर एग्जाम्पल, द पी वेव्स वर रीचिंग फर्स्ट ऑन द सीज्मोग्राफ. ये इमेज आपको दिखाई थी. द पी वेव्स वर रीचिंग फर्स्ट ऑन द सीज्मोग्राफ, then your S waves, and then your surface waves. So that is one major difference that you have to remember. So they are the last to report or record on the seismograph.
And regarding destruction, we have seen that the P waves are least destructive, but S waves are very destructive. Now these surface waves cause displacement of rocks. They are very destructive. They cause displacement of rocks. इतने ज़्यादा destructive होते हैं जिसके वजह से आपका स्ट्रक्चर भी जो है एट टाइम्स कोलैप्स कर जाता है. कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर. सो दे कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ rocks leading to the collapse of structure. Therefore you can say that they are more destructive or very destructive in nature. So what I think all of these points should be clear because I have already explained all of this. If that is not clear, we'll just quickly revise in case to somebody this is not clear. So these waves are generated because of the interaction between the body waves along with the surface rocks, right? अब ये जो surface waves होते हैं नाम से ही समझ आएगा कि they will move only along the surface because इनका जो wavelength होता है वो काफ़ी लंबा होता है. That is why they are also called as long period waves. ट्रांसवर्स या शेयर वेव्स ही होते हैं बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. यू कैन राइट इट हियर ऑल्सो सो दैट यू डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड. डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन. इसीलिए इनको ट्रांसवर्स या शेयर वेव बोलते हैं. जैसे आपका एस वेव्स था, इस मामले में दे आर काइंड ऑफ सिमिलर, दे आर हैविंग काइंड ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, बट दे आर द लास्ट टू रिपोर्ट ऑन द सीज्मोग्राफ एंड दे आर वेरी डिस्ट्रक्टिव इन नेचर. सो दे कॉज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स. और फिर रॉक्स के साथ इंटरेक्शन है ना, उसी से जनरेट होते हैं, तो रॉक्स का पूरा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है जिसकी वजह से स्ट्रक्चर भी, जो अर्थक्वेक में जब स्ट्रक्चर गिरने की बात होती है ना, वो जो डैमेज कॉज होता है अर्थक्वेक में जहाँ जहाँ पर, वो आपका सरफेस वेव्स की वजह से होता है एंड नॉट फ्रॉम दी प्राइमरी वेव्स. प्राइमरी वेव्स की एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है विच प्रोबेबली आई फॉरगॉट टू टेल यू, बट आई जस्ट टेल यू वंस वी आर डन विद दिस सरफेस वेव्स थिंग. So till this point it should be clear and you should remember the special characteristics. Next, they are developed in immediate neighborhood. So they develop in immediate neighborhood. कहाँ के neighborhood में, किसके पास में होते हैं? Of the epicenter. You know what is epicenter now? So they develop in the immediate neighborhood of the epicenter and affect only the earth's surface. Only the earth's surface. If I quickly show you this, ठीक है, ये एपिसेंटर करा था कि अर्थ सरफेस पे जो पॉइंट होता है जहाँ पे फर्स्ट टाइम इम्पैक्ट पता चलता है ऑफ द अर्थक्वेक, दैट इज कॉल्ड एज एपिसेंटर. बिकॉज एक्चुअली जहाँ जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड एज हाइपोसेंटर या फिर फोकस. तो इसीलिए एपिसेंटर के पास में ही ये जनरेट होता है और हमें सरफेस पे फील होता है, क्योंकि अर्थ के इंटीरियर में वट एवर इज हैपनिंग विल नॉट बी डायरेक्टली एबल टू फील दैट. वी फील वॉट इज हैपनिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. दैट इज वाई ये सर्फेस वेव्स वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट. सो दे इफेक्ट ओनली द अर्थ सर्फेस. अच्छा, व्हाट अबाउट कि ये किस किस तरह के मीडियम में ट्रैवल करते हैं, उस पर भी अभी बात करते हैं. दे एंड बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे ट्रैवल ओनली अक्रॉस द सर्फेस वाइल द बॉडी वेव्स ट्रैवल इन ऑल द डायरेक्शंस, सो दीज surface waves lose energy slowly than the body waves. इसलिए इनका इम्पैक्ट भी हमें ज़्यादा पता चलता है. एंड बिकॉज दे रीच लास्ट ऑन द सीज्मोग्राफ, सो आप समझ ही सकते हो दे आर स्लोएस्ट अमंग द अर्थक्वेक वेव्स. जो फास्टेस्ट था वो पी वेव्स था, तो इसलिए वो सबसे पहले पहुंच भी जाता था. ठीक है, वी हैव ऑल्सो सीन अबाउट दिस बीइंग द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव. दिस वन इज़ व्हाट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. नेक्स्ट, अगर हम इसमें एक एल वेव्स यानी लव वेव्स की बात करें, सो दे आर द फास्टेस्ट सरफेस वेव्स. कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि अभी तो हमने बोला स्लोएस्ट है तो फास्टेस्ट कैसे हो गया. स्लोएस्ट अमंग ऑल द अर्थक्वेक वेव्स, ऑल द 4 kinds ऑफ वेव्स दैट वी आर डूइंग, बट उसमें सरफेस वेव्स में जो फास्टेस्ट होता है दैट इज़ द एल वेव्स. सो फास्टेस्ट सरफेस वेव एंड मूव्स द ग्राउंड फ्रॉम साइड टू साइड. ठीक है, और एक लास्ट आपका आता है रेलिक वेव्स. आई होप आपने वीडियो में इसको अच्छे से देखा होगा. वीडियो में उन्होंने चारों वेव्स के बारे में ही आपको दिखाया है. सो आर वेव्स और द रेलिक वेव्स
अब यहाँ से क्या होता है, they cause, because they are also kind of surface waves, so they cause most of shaking and damage. अर्थक्वेक से अगर सबसे ज़्यादा शेकिंग और डैमेज कहीं से आता है वो आता है रेलिक वेव्स की वजह से। और ये किस तरीके के होते हैं, द रोल्स along the ground, रोल करते हैं ये वेव्स ग्राउंड पर। कैसे रोल करते हैं, लाइक अ वेव, आपने पानी में वेव देखा होगा ना, समुद्र में आपने वेव देखा होगा। सो लाइक अ वेव रोल्स अक्रॉस अ लेक और अ ओशन, वाटर बॉडी में जिस तरीके से वेव्स जनरेट होती है ना, जैसे रोल उस पर कर रही होती है, ऐसे बह रहा होता है, काइंड ऑफ दैट दे रोल जस्ट अलॉन्ग द ग्राउंड एंड दे मूव द ग्राउंड अप एंड डाउन, जिसकी वजह से बहुत डिस्ट्रक्शन जो है वो कॉज होता है, अप एंड डाउन एंड साइड टू साइड इन सेम डायरेक्शन। इसीलिए सबसे ज़्यादा डैमेज यहीं से होता है, सेम डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वेव्स। ये सब कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो आपको याद रखने हैं। सो अप एंड डाउन ऑल्सो एंड साइड टू साइड ऑल्सो। एल में हमने क्या देखा, मूव्स द ग्राउंड ओनली साइड टू साइड, नॉट अप एंड डाउन, ठीक है। सो दिस यू विल रिमेंबर अबाउट द सरफेस वेव्स। अब ये जो कि सरफेस पे हैं, तो यहाँ पे कोई सॉलिड लिक्विड गैस वाला चक्कर ही नहीं है, बिकॉज वो तो अर्थ के इंटीरियर में आपको देखना था, ये तो सरफेस रॉक्स के साथ में टकरा रहे होते हैं, ठीक है। अब जो पी वेव्स में हमने देखा, जो मैंने आपको बताई एक बात कि आई हैड जस्ट मिस्ड टू से दैट, वहाँ पे क्या होता है कि अगर हम बात करें कि पी वेव्स बिकॉज दे आर द नॉन डिस्ट्रक्टिव या फिर सबसे लीस्ट डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं, तो अर्थक्वेक की जो एडवांस वार्निंग पॉसिबल होती है ना, कि थोड़ा पहले से, अभी आपने देखा ना वीडियो में भी दे हैव शोन कि डॉग्स जो हैं उनको पता लग जाता है। एडवांस अर्थक्वेक की जो वार्निंग होती है that is possible by detecting the non-destructive primary waves। इन्हीं से पता चलता है non-destructive primary waves। अब आप बोलोगे इनसे क्यों पता चलता है, because they travel more quickly। हमने देखा ना फास्टेस्ट है, so they travel more quickly through Earth's crust। तो ये भी अगर आपसे देखिए हर चीज़ रिलेटेड है, you don't only have to remember that okay they are the fastest waves, so they travel they record themselves first on the seismograph, of course that is happening, but along with that, because they are able to reach or travel more quickly through the earth's crust, the warning is got through these waves। सबसे पहले जो पहुंचेगा वहीं से तो पता लगेगा ना, आइडिया लग जाता है। So these are the points about the P waves and the S waves that we have already done, and these are the points about your surface waves, जिसमें आपको L और R के थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने हैं। अबाउट द वीडियो आई हैव ऑलरेडी शोन यू कैन जस्ट चेक देम अगेन, ताकि आपको प्रोपोगेशन का डायरेक्शन जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। इन द नेक्स्ट वीडियो विल फर्दर टॉक अबाउट द shadow zone etc, because actually I had to cover all of these right in the one video only, but because of some interruption I had to cover it in the other section. So in the next video we'll talk about your shadow zone and then related things to earthquake, like types of earthquake or some effects etc. I hope the videos are of some use to you and helpful in your preparation. Please do like, comment, share and subscribe. Do not forget to check the environment videos also. Thank you so much. Take care till then. Bye bye.